اس وقت ملک کافی مشکلات کا شکار ہے. معاشی بحران میں سب سے زیادہ عمل دخل IMF کا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے سچ بتا دیا. بولے IMF کہہ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور سبسڈیز کو ختم کریں. ملک میں IMF کی وجہ سے مہنگائی ہے. پہلی شرائط پوری ہونے تک قرضے بھی نہیں دے رہا. معاہدے پر عمل کریں گے تو اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی. وزیر اعظم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. امپورٹڈ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش جاری ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں عدم اعتماد کے بعد انتخابات کے لیے عوام کے پاس جائیں گے. پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی. پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے. پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے. جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سیاست نہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں ایک مکتبہ فکر نے سیاست کو گندا کیا. ایک دوسرے کو چور کہنے سے پہلے اپنا دامن صاف ہونا چاہیے. پرویز الہی اگر 186 ووٹ دے ہی لیں گے تو آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن ابھی وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں. عمران خان فیصلے کرتے وقت ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی حکومت پر تنقید. بولے ہماری نیت نیک اور سم درست ہے. PDM والوں کی نیت اور سیاست میں کھوٹ ہے. ناہل ٹولے نے چند ماہ کے اندر معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. عوام PDM کی حکومت کو جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ سارے مل کر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ کو بیچا نہیں جا رہا. 3 ہوائی اڈوں کے آپریشنز آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ہم بہترین آپریٹرز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر سعد رفیق کی مخالفین کے بیان پر وضاحت. کہا اس ماہ گرین لائن بھی چلا دیں گے. رزقاری کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. مخالفین ریلوے کے بارے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. خطرہ ہے اگر ملک میں کسی قیادت کے بغیر احتجاج شروع ہو گیا تو اس انتشار کو کون روکے گا. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں مہنگائی کی شرح 31% اضافے کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. اس معاشی تباہی کے بعد عوام کا رد عمل نہ آنا حیران کن ہے. پاکستان نے اماراتی بینکوں کو قرضہ لٹا دیا. زر مبادلہ کے ذخائر ایک ماہ کی درآمدات سے بھی کم ہو گئے. زر مبادلہ کے ذخائر صرف 4.5 ارب ڈالر رہ گئے. پاکستان کو جنیوا کانفرنس میں غیر ملکی امداد کا سہارا درکار. جنیوا کانفرنس میں 1.5 ارب ڈالر کی فراہمی کی کوشش کی جائے گی. ہماری حکومت ختم کرنے کے بعد سے آج تک ذخائر 16.4 بلین ڈالر سے کم ہو کر صرف 4.5 ڈالر رہ گئے. ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے. سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ. لکھا 2000 کے بعد سب سے کم درآمدی کور ہے. یہاں کالی رویگو ڈالے سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے بندے اٹھا رہے ہیں. ملک چلانے والوں کا کوئی حال نہیں. حکومت غلامی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی. فن گداگری میں حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شیخ رشید کہتے ہیں پاکستان کی سیاست میں 100 دن اہم ہے. غریب عوام خودکشیوں پر مجبور ہے. 77 وزراء موج میلہ کر رہے ہیں. اپنے ڈالر لانے کے بجائے یہ ڈار کو لے آئے. اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا باہر آتے ہیں, فیصلہ عمران خان کا ہوگا. بیروزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران نیرو کی طرح بانسری بجا رہے ہیں. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ کہتی ہیں ہر دن کوئی نئی صنعت یا کارخانہ بند ہو رہا ہے. خوراک بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے. کیا پاکستان کو دیوالیہ کرنا رجیم چینج آپریشن کے مشن کا حصہ ہے؟ پاکستانی عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو نہیں بھولیں گے.
IMF का वफ्द जल्द पाकिस्तान आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़िश्ता रोज MD IMF के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ। IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती अज़्म के बारे में आगाह किया। तबाकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की माशी मुश्किलात के बारे में भी बताया गया। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी से मुल्क में महंगाई की लंबी उड़ान, गरीब अवाम सदा रहने लगे परेशान। रवा हफ्ते 23 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, महंगाई की शरह बढ़कर 23.6% हो गई। मुल्क भर में मुर्गी की कीमतें 16% से बढ़ गई। टोटा बासमती चावल की कीमतों में 5%, आटे की कीमतों में भी 5% इजाफा हुआ। आम शहरी 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। रिपब्लिकन रहनुमा केवन मैकार्थी 15 बार वोटिंग के बाद अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। मैकार्थी को 216, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हकीम जेफरेस को 212 वोट मिले। ऐवान में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 222 और डेमोक्रेट्स की तादाद 213 है। मैक्सिको में मुनशियात किंग एल चैपो के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ गैंग्स के फौज पर हमले, 29 हलाक, 2 फौजी तैयारों को भी निशाना बनाया गया। तैयारों ने इमरजेंसी लैंडिंग की। जिलाओ घेराव के वाकयात में मुतअद्दिद गाड़ियां नजर आतिश। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने कहा कि आइंदा माह दुबई में टेनिस चैंपियनशिप के बाद टेनिस रैकेट लटका दूंगी। मैं WTA फाइनल्स के बाद इख्तिताम करना चाहती थी। हम WTA के फाइनल्स में पहुंच रहे थे लेकिन इंजरी का शिकार हो गई। और मुल्क भर में सर्दी के डेरे, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात ने आज शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, खिता पोटोहार में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी। कोयटा, जोब, जियारत, हरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन पशीन में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इस वक्त मुल्क काफी मुश्किलात का शिकार है। माशी बहरान में सबसे ज्यादा अमल दखल IMF का है। IMF का कह रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं और सब्सिडीज को खत्म करें। IMF की वजह से महंगाई है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि IMF कहता है कि पहले शराइत को पूरा करें, बाद में मदद करेंगे। मुआहदे पर अमल करेंगे तो अशिया की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। वजीर आजम महंगाई को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। IMF मुआहदे के हवाले से लोग मुख्तलिफ किस्म की कहानियां गढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बेशरम शख्स चाहता है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। किया जा रहा है और उसका भी जो है वो अनकरीब जो है वो उसको इनॉगरेट करेंगे। इसी तरह से इसी हलके में आपका जो कौमी असम्बली का हलका है, इसमें ये इस साइड पे तो ये पैंसरा का ऑफिस हो गया। दूसरी साइड पे मेरी ये तजवीज़ है कि अमीपुर बंगला में भी एक इसी तरह ऑफिस जो है उसको बनाया जाए, ताकि वहाँ पे भी जो है वो इर्द गिर्द के जो देहात हैं, जिस तरह से ये पैंसरा के इर्द गिर्द के देहात जो हैं उनको ये सहूलत जो है ये मैसर आएगी, तो इसी तरह से उस इलाके में भी जो है ये सहूलत जो है ये मैसर आए। और अमीपुर बंगला में जो है वो एक पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खोला जाए। इसी तरह से इसी कौमी असम्बली के हलके में जो सरगोदा रोड साइड है, तो वहाँ पे जो है वो राम दिवाली इसी तरह गांव है सड़क के ऊपर,
تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک نادرہ کا دفتر جو ہے وہ کھلنا چاہیے تاکہ یہ پورے حلقے میں لوگوں کو یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے، اور یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوں۔ اور یہ جو میاں اجمل آصف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس نادرہ آفس میں جو ہے وہ ایک ڈیسک جو ہے وہ پاسپورٹ کے آفس کا بھی ہونا چاہیے، تو نہ صرف اس آفس میں بلکہ جو دوسرے 2 آفس میں نے بات کی، انشاءاللہ تینوں میں جو ہے پاسپورٹ آفس جو ہے اس کے ڈیسک جو ہیں وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے، اور جو پاسپورٹ آفس شہر میں موجود ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی جو ہے وہ ڈبل کیا جائے گا تاکہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی سہولت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو۔ اسی طرح سے یہ جس طرح سے میاں اجمل آصف صاحب نے بات کی ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ وجود میں آئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ صوبائی بجٹ جو ہے اس سال کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ منظور ہوا، اور صوبائی بجٹ جو ہے اس میں سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امپورٹڈ ٹولے کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ سازش ٹولہ اسلام آباد کے بعد کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ عوام نے انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مزید کہا کہ اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے بعد ہم الیکشن کے لیے عوام کے پاس جائیں گے۔ ملک کے مسائل کا حل نئی الیکشن اور عوامی مینڈیٹ سے آنے والی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی صورتحال پر اہم ترین اجلاس ہوا۔ زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں تحریک انصاف کی سینئر پارٹی قیادت کے علاوہ صوبائی اراکان نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران پنجاب کی سیاسی صورتحال، خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اپنے ایک بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے، باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی میں شامل کیا جا رہا ہے، مجھے نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کو لانے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے۔ فاٹا کے ایم این ایز نے بتایا کہ وہاں حالات خراب کیے جا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں چاہتے، ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں بلکہ انصاف کے حصول کے لیے ہے۔ پرویز الہی اور ہم اتحادی ہیں، زین الباجوہ بارے ہمارا موقف الگ الگ ہے، پرویز الہی ہمیں ہمارے موقف سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ وفاقی وزیر قانون اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ایک مکتبہ فکر نے سیاست کو گندا کیا، جلسوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا سیاست نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا، لاہور میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا پہلا اور آخری تعارف وکیل کے طور پر ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں ایک مکتبہ فکر نے سیاست کو گندا کر دیا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے پہلے آپ کا اپنا دامن بھی صاف ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی اگر 186 ووٹ لیں گے تو آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ابھی وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وکیل تلوار کے بجائے قانون اور بات چیت پر یقین رکھتا ہے، اور وفاقی حکومت نے وکلاء کے لیے بجٹ میں 50 کروڑ روپے کی رقم مختص کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون گورنر کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہے، جبکہ صدر اور گورنر معاملے میں کسی مشورے کے پابند نہیں ہے۔ اختیار قومی اسمبلی میں صدر اور صوبائی اسمبلی میں گورنر کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ عمران خان فیصلے کرتے وقت ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل شاہی اور وکیل فیصل چودھری نے ملاقات کی، جس میں زہلم اور فیصل آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا، ہماری نیت نیک اور سم درست ہے، جبکہ پی ڈی ایم والوں کی نیت میں بھی کھوٹ ہے اور سیاست میں بھی۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے چند ماہ کے اندر معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگوں نے اپنی کھوٹی سیاست کی خاطر ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، یہ انہیں اپنی مفادات سیاست کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ عوام پی ڈی ایم کی حکومت کو جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھ کر
फैसले किए हैं। इस मौका पर फैसल चौधरी एडवोकेट का कहना था वकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए चौधरी परवेज इलाही का जज्बा काबिल कदर है, जबकि अफजल साहिल का कहना है कि परवेज इलाही ने मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को बेचा नहीं जा रहा, हम बेहतरीन ऑपरेटर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलवे मुलाजमीन तुंदही से काम कर रहे हैं, इस माह ग्रीन लाइन भी चला देंगे। पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। निजकारी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुखालिफिन रेलवे के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पाकिस्तान के 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। निजकारी के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसी भी एयरपोर्ट को बेचा नहीं जा रहा। पीआईए के खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि रेलवे मुलाजमीन ने दिन रात काम करके ट्रैक्स की बहाली का काम किया। तो हम अपनी न सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्रॉस कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे, बल्कि जो डेट सर्विसिंग है वो डेट सर्विसिंग भी करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि डेट पुराना है, तकरीबन 650 या 700 अरब के बीच का है। कौमी बैंकों का ज्यादा डेट है, लेकिन पीआईए ये सारा कर सकता है अगर उसे काम करने दिया जाए और तसलसल रहे। ये ना हो कि उखाड़ पछाड़ होती रहे, तसलसल रहेगा तो ये काम 3 से 4 साल में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे पास जो चंद महीने बाकी हैं, अगर अल्लाह को जिंदगी देना मंजूर है तो उसमें जो हम कर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फूड क्वालिटी, उसको हमने इम्प्रूव किया है, आप टेस्ट कर सकते हैं, पहले की निस्बत फूड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। लाहौर में बहुत तबाही थी, कराची में हमारा अपना किचन है, पिंडी में भी अपना किचन है, पिंडी किचन एयरपोर्ट से बहुत दूर है, उसको कुछ ठीक किया है, मजीद ठीक करने की गुंजाइश है। कराची वाले की कैपेसिटी बढ़ा को बेहतर किया, इम्प्रूव किया, उसको 600 लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो मायार नहीं था जो चाहिए था, मायार बेहतर किया है। लाहौर में पता नहीं किसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था और वो हम जानते नहीं थे कौन है, उसकी मायार बहुत घटिया था। अब फिर इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग की तो अब सूरत हाल बेहतर है। दूसरी बात है जहाज़ों की हालत, 14 आपके पास A320 है, 4 नए लिए हैं लीज पे, 10 पहले वाले थे। तो जो नशिस्तें थी वो 7 जहाज़ों की ठीक होने वाली थी, कोई हाल नहीं था नशिस्तों का। उन 7 में से 2 की नशिस्तें ठीक हो गई हैं, बाकी 5 की इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल सीटें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल नई सीटें होंगी, चेंज होंगी, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये A320 गल्फ में भी जा रहा है और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट भी कर रहा है, तो ये एक टास्क मुकम्मल होगा। दूसरी बात है आपके 777, आपके पास 12 777 है। जब ये चार्ज लिया था 8 फ्लाई कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे। ये जो 2 777 है ये इंशाल्लाह एक इस महीने और एक अगले महीने फ्लीट में वापस आ जाएगा, तो 10 777 फ्लाई करेंगे, बाकी जो 2 हैं उनका मुश्किल काम है। ये जो 777 है इनकी भी सीटों के हालात ठीक नहीं है और यहाँ पे इंफोटेनमेंट का सिस्टम भी ऑब्सलीट हो गया है, तो इंफोटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनकी सीट्स भी तब्दील होंगी। ये एक महंगा काम है, मरहलावार होगा, इसको 8 महीने तकरीबन लग जाएंगे, हम 1-1, 2-2 करके बदलते जाएंगे। सबसे पहले बदलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि खतरा इस बात का है कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर इhtजाज शुरू हो गया तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अभी भी अवाम ने हैरान कुन सब्र का मुजाहरा किया है, वरना इस माशी तबाही के बाद रद्द अमल ना आना हैरान कुन है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को एक कर्जा लुटा दिया है, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद कम हो गए हैं। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर की मजीद कमी के बाद 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। ज़राए का कहना है कि ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह की दरामदाद से भी कम हैं। ज़राए ने बताया कि एमिरेट्स बैंक को 60 करोड़ डॉलर और दुबई इस्लामिक को 42 करोड़ डॉलर का कर्जा वापस किया गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की इमदाद का सहारा दरकार है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 अरब डॉलर की फराहमी की कोशिशें की जा रही हैं। पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि ज़र मुबादला के ज़खायर खतरनाक हद तक गिर चुके हैं और मुल्क दिवालिया होने के धाने पर खड़ा है।
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ زر مبادلہ کی ذخائر میں مزید کمی 2000 کے بعد سب سے کم درآمدی کور ہے۔ درآمدی حکومت کی نااہلی اور لاپرواہی کی وجہ سے ذخائر کی موجودہ خطرناک حد تک کم سطح ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے مزید کہا، ہماری حکومت ختم کرنے کے بعد سے آج تک ذخائر $16.4 بلین سے کم ہو کر صرف $4.5 رہ گئے ہیں۔ یہاں کالی ویگو ڈالے سیاسی مخالفین پر دباؤ ڈالنے کے لیے بندے اٹھا رہے ہیں، ملک چلانے والوں کا کوئی حال نہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ حکومت غلامی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، فن گداگری میں حکومت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹویٹر پر شیخ رشید نے لکھا کہ پاکستان کی سیاست میں 100 دن اہم ہے، قریب ایڑیاں رگڑ رہا ہے، 77 وزراء موز میلہ کر رہے ہیں، اپنے ڈالر لانے کے بجائے یہ ڈار کو لے آئے۔ سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا باہر آتے ہیں، فیصلہ عمران خان کا ہوگا، الیکشن ہر قیمت پر ہوں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومت پنجاب اور رہنما پاکستان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران نہروں کی طرح بانسری بجا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ ہر دن کوئی نئی صنعت یا کارخانہ بند ہو رہا ہے، بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران نہروں کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، خوراک بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کیا پاکستان کو دیوالیہ کرنا رجیم چینج آپریشن کے مشن کا حصہ ہے؟ پاکستانی عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو نہیں بھولیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ترجمان حکومت پنجاب اور رہنما پاکستان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران نہروں کی طرح بانسری بجا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مسرت جمشید چیمہ کا کہنا تھا کہ ہر دن کوئی نئی صنعت یا کارخانہ بند ہو رہا ہے، بے روزگاری کا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمارے حکمران نہروں کی طرح بانسری بجا رہے ہیں، خوراک بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو رہی ہے۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کیا پاکستان کو دیوالیہ کرنا رجیم چینج آپریشن کے مشن کا حصہ ہے؟ پاکستانی عوام ملک کے ساتھ اس ظلم کو نہیں بھولیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جلد پاکستان آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کا وفد جلد پاکستان آئے گا۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ گزشتہ روز ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط کو پورا کرنے کے حکومتی عزم کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ تباہ کن سیلاب کے بعد پاکستان کی معاشی مشکلات کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر وزیر آباد حملے کے کرنے والے ملزم نوید کے موبائل کی فرانسک رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ وزیر آباد میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزم نوید کے موبائل کی فرانسک رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے، جس کے مطابق ملزم کے فون سے 2 مختلف کمپنیوں کی سمز برآمد ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوید کے موبائل فون سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکور نہ ہو سکا، تاہم اس کے موبائل فون میں موجود واٹس ایپ گروپ میں ایک نمبر علی رضا کے نام سے محفوظ تھا۔ رپورٹ کے مطابق ملزم نوید کے فون سے 138 فون نمبرز اور 1869 کالز کا ریکارڈ مل گیا ہے، جبکہ اس فون سے 337 ایس ایم ایس اور 1956 تصاویر بھی ملی ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ملزم نوید کے موبائل فون سے 499 گفتگو کی کالز اور 212 ویڈیوز بھی ملی ہیں اور فون کی تمام آڈیو اور ویڈیو کی ڈی وی ڈی بنا کر جے آئی ٹی کے حوالے کر دی گئی ہے۔ توشہ خانہ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں
3 रुकनी फुल बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी शामिल हैं। एडवोकेट अजहर सदीक ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली को चैलेंज कर रखा है। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच जस्टिस आबिद अजीज की सरबराही में 11 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर और जस्टिस तारक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने गवर्नर पंजाब को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर रखे हैं। अब बात करें कुछ महंगाई की। मुल्क में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए हैं। रवां हफ्ते 23 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की शरह बढ़कर 23.60 हो गई। मुल्क भर में मुर्गी की कीमतें 16% से बढ़ गई। टोटा बासमती चावल की कीमतों में 5%, जबकि आटे की कीमतों में भी 5% के करीब इजाफा हुआ है। केला, प्याज, ब्रेड और दाल मूंग की कीमतें भी अवाम की जेब पर भारी रही। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में मुर्गी की कीमत में 173 रुपए फी किलोग्राम बढ़ गई। टोटा चावल की कीमत में 46 रुपए फी किलोग्राम, 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 523 रुपए का इजाफा हुआ। कराची के इलाके मंगूपीर में झोंपड़ी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने का वाकया कटी पहाड़ी इस्लामिया कॉलोनी में पेश आया, जहां 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों को जख्मी हालत सिविल बिजनेस वार्ड मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मियों की ताब न लाते हुए अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साल अक्सा, 5 साल उज़मा और 7 साल मोहम्मद शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने आग से 3 बच्चों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं कि कराची के इलाके मंगूपीर में झोंपड़ी में आग लगने से 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने का वाकया कटी पहाड़ी इस्लामिया कॉलोनी में पेश आया, जहां 3 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बच्चों को जख्मी हालत सिविल बिजनेस वार्ड मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 6 साल अक्सा, 5 साल उस्मा और 7 साल मोहम्मद शामिल है। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी ने आग से 3 बच्चों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस करते हुए कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जावेद अहमद काजी का मियो अस्पताल इमरजेंसी का अचानक दौरा। कोहिनूर के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, लाहौर मियो अस्पताल की इमरजेंसी में बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं, अद्वियात की फराहमी के लिए ओपन डोर पॉलिसी होगी। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर जावेद अहमद ने कहा, ओपन डोर पॉलिसी से करप्शन का खात्मा होगा। अद्वियात के लोकल परचेज के लिए 10 से जायद कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं। एक कंपनी मालिक ने झूठी FIR दर्ज करवाई थी, ऐसे मामलात पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सदा का मुशावरती इजलास। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वजीर मियां इस्लाम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बशारत मियां महमूद रशीद और MNA ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह शरीक थे। इजलास में यूनियन कौंसलों की हद बंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में इत्तेफाक के राय से यूनियन कौंसलों की हद बंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के जारी होने वाले एक तरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही और इजलास के शुरका ने कहा कि यूनियन कौंसलों की हद बंदियों का एक तरफा नोटिफिकेशन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस एक तरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती।
इलेक्शन कमीशन का एक तरफा नोटिफिकेशन अवामी राय को बुलडोज करने की कोशिश है। वजीर आला का कहना था कि यूनियन कौंसिलों की हदबंदियों के हवाले से मकामी लोगों और इंतजामिया को शामिल नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब आईन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी। बल्दियाती इदारे जमहूरियत की नर्सरी होते हैं। मजबूत अवामी हुकूमत के जरिए ही अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर हल हो सकते हैं। एनएफ का मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। DGND नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के अहकाम पर हाईवे और एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुलजिमान से भारी मिकदार में चरस अफ्यून बरामद कर ली गई। आपको बताएं कि एनएफ का मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DGND नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के अहकाम पर हाईवे और एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। मुलजिमान से भारी मिकदार में चरस अफ्यून बरामद कर ली गई है। आपको बताएं कि एनएफ का मुल्क भर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। DGND नारकोटिक्स फोर्स पंजाब के अहकाम पर हाईवे और एयरपोर्ट पर कार्रवाइयां। मुलजिमान से भारी मिकदार में चरस अफ्यून बरामद कर ली गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। अदील, आपको मेरी आवाज आ रही है? आगाह कीजिएगा। जी जी, आपकी आवाज कम आ रही है बहुत ज्यादा। तफसीलात से आगाह कीजिएगा अदील। आज बिल्कुल अगर बात की जाए ANF के हवाले से तो DGRF ANF के हवाले से पूरे मुल्क में जो है वो मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेन RTD हाईवे उप के करीब खाली कंटेनर से 306 किलो चरस बरामद कर ली गई है। अफगान बशिंदे समेत मर्दान का रिहायशी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी वजह से अगर बताता चलूं तो आपको मेन सुपर हाईवे पर कार से 150 किलोग्राम और 9 किलो 600 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई है। इस्लामाबाद रोड पर टूल प्लाजा पर 2 कारों से मजमूई तौर पर 20 किलो 400 ग्राम चरस और 900 किलो 600 ग्राम अफ्यून बरामद कर ली गई है। इस वाले से अगर बताता चलूं श्रीनगर हाईवे पर से 8 किलो 400 ग्राम चरस और 6 किलो अफ्यून बरामद करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शारजा जाने वाले मुलजिम के पेट से 76 हीरोइन भरे कैप्सूल बरामद करके शिमाली वजीरिस्तान का रिहायशी को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। जी अदील, आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में शदीद धुंध और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गया। लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं डेरा इस्माइल खान से हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। डेरा इस्माइल खान में कल रात गए से मौसम की अंगड़ाई से शदीद धुंध में इजाफा हो गया, जिसके बायस हादसात में भी इजाफे के खदशात जन्म लेने लगे। डेरा इस्माइल खान और मुजाफात में शदीद धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मुतासर, कारोबार जिंदगी मुअत्तल, लोग घरों तक महदूद हो गए। स्कूल और कॉलेज के तलबा और तलबात को शदीद परेशानी का सामना हद निगाह सिफर के करीब। सर्दी में एक तवील अरसे के बाद इजाफा हो गया। गिरदनवा के पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की इतलात। रेस्क्यू 1122 और डेरा ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से तंबीह की है कि धुंध के दौरान अपनी अपनी गाड़ियों के हेडलाइट ऑन करके रखें और एक दूसरे के दरमियान फासला कायम रखें। स्पीड से गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र न करें। जबकि दूसरी जानिब स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना है। वालिदैन ने महकमा तालीम से सर्दियों की छुट्टियां मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी। एडिशनल IG साउथ पंजाब साहिबजादा शहजादा सुल्तान का RPO भावलपुर मुनीर अहमद ज़ियाराओं की हमरा रहीम यार खान का दौरा, पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और मिठाई और तहाइफ तकसीम किए। मजीद जानते हैं अब्दुल गफार महर की इस रिपोर्ट में। एडिशनल IG साउथ पंजाब साहिबजादा शहजाद सुल्तान ने अपनी तैनाती के बाद जिला रहीमयार खान का पहला दौरा किया, जिसमें वो पहले मरहला में कच्चा भोंग पहुंचे, जहां पर RPO भावलपुर मुनीर अहमद ज़िया, DPO रहीमयार खान अख्तर फारूक, ASP शाहजेब चाचर ने उन्हें खुश आमदीद कहा। कच्चा में उन्हें RPO मुनीर अहमद ज़िया और DPO मियां अख्तर फारूक ने नक्शा के जरिए उन्हें इलाका की जुग्राफी और दीगर तमाम सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। इस मौका पर ASP शाहजेब चाचर और SHO भोंग ने भी
उन्हें ब्रीफिंग दी, जिसके बाद उन्होंने कच्चा में कैंप, पुलिस कैंप्स और अगले मोर्चों का रुख किया, जहां पर उन्होंने तैनात पुलिस नफरी के अफसरान और जवानों से मुलाकात की और तमाम अहलकारों से मुसाफा करके उनका हाल दरियाफ्त किया। इनके बुलंद मोराल पर उन्हें शाबाश दी। दोपहर का खाना जवानों के हमरा खाया, मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर अहलकारों ने अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कच्चा की सूरत हाल पर पुलिस अफसरान से मुफस्सिल मीटिंग करते हुए मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। एडिशनल आईजी साउथ पंजाब शहजाद सुल्तान को कच्चा में पुलिस कैंप्स और अगले मोर्चों की पुख्ता तामीर के मंसूबों से भी आगाही फराहम की गई। उन्हें साइट का विजिट भी करवाया गया। उन्होंने मोर्चा में दाखिल होकर आरपीओ मुनीर अहमद ज़िया और डीपीओ मियां अख्तर फारूक के हमरा इलाके का जायजा भी लिया। इस मौका पर उन्होंने अफसरान और जवानों को मुख्तलिफ हिदायत और अहकामात भी जारी किए। उन्हें मवक्त चाको चौबंद रहने और पेशा वराना महारत के साथ फर्ज की अदायगी को यकीनी बनाने की हिदायत भी की। उन्होंने कच्चा में जारी हिकमत अमली और इजहार इत्मीनान करते हुए मजीद मौसर रखने का भी हुक्म दिया। बाद अज़ां वो डीपीओ ऑफिस रहीमियार खान पहुंचे, जहां पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें जनरल सलामी पेश की। डीपीओ ऑफिस के सब्जाजार में एडिशनल आईजी शहजाद सुल्तान और आरपीओ मुनीर अहमद ज़िया ने पौधे लगाए, जिसके बाद उन्होंने जिला रहीमियार खान की बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल पुलिस ऑफिसरान और जवानों में आरपीओ मुनीर अहमद ज़िया, डीपीओ अख्तर फारूक के हमरा नगद इनामात और तारीफी इसनाद भी तकसीम की और कहा, पुलिस अफसरान अपने फरज की अदायगी को पेशा वराना महारत, दयानतदारी और फर्ज शनासी के साथ अदा करने में कोई कसर उठा न रखें। अवाम नास के साथ हुस्न सलूक और खुश इखलाकी के साथ पेश आएं और थाना की सतह पर मेरिट और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। मजलूम की दादरसी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऐनी हाथों से निपटा जाए। उन्होंने जिला रहीमियार खान की मजमूई कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। डीपीओ अख्तर फारूक और उनकी पूरी टीम को हरिपुर में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शराज अनवर खान का मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा, आटे के मेयार और रिकॉर्ड को चेक किया। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शराज अनवर खान का मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा, आटे के मेयार और रिकॉर्ड को चेक किया। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी फूड व डायरेक्टर फूड की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शराज अनवर खान ने हिमरा स्टाफ के हरिपुर के मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का दौरा किया, जहां पर आटे के म्यार को चेक करने समेत सब्सिडाइज आटे की तरसील का भी जायजा लिया, जबकि आटे के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री तज्जिए के लिए रवाना कर दिए। म्यार न होने की वजह से कई फ्लोर मिलों पर 3 लाख से ज्यादा जुर्माना भी आयद किया। वाज़ेह है कि सेक्रेटरी फूड ने महकमा खुराक के अफसरान को हिदायत जारी की थी कि मुख्तलिफ फ्लोर मिलों का दौरा करें और आटे के म्यार के साथ साथ रिकॉर्ड भी चेक करें। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शराज अनवर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटे के म्यार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि गैर म्यारी आटे और दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शराज अनवर खान का मजीद कहना था कि शहरियों को हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक साफ सुथरी अशिया खुर्दनोश की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में किसी किस्म की मुशीर दाखिला इतलात हुकूमत पंजाब उमर सरफराज सिमा ने कहा कि ताकतवर हल्कों की शह पर शरीफ जरदारी गैंग अपने आप को कानून से बालातर समझता है और CID में पेश नहीं हो रहा। वफाकी वज़रा टीवी पर बयान देते हैं, लेकिन इंक्वायरी टीम के सामने पेश होने से घबरा क्यों रहे हैं। उमर सरफराज सीमा का कहना था कि अगर शरीक जुर्म नहीं तो वफाकी वज़रा को JIT के सामने पेश होने से घबराहट कैसी। नून लीग और हमलावर का बयान एक होना महज इत्तेफाक नहीं, सोची समझी साजिश है। वफाकी वज़रा और सहूलतकार पहले दिन से हकाइक के बरक्स बयानियां चला रहे थे, जिसे JIT रिपोर्ट ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। रहीम यार खान में 1926 से कायम शुदा उर्दू लाइब्रेरी तारीखी अहमियत की हामिल है, जिससे तलबा और तालिबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होती है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल गफ्फार मेहर की इस रिपोर्ट में। अदब और तारीख के हवाले से अपनी मिसाल आप है। जहाँ की तारीखी मुबारक उर्दू लाइब्रेरी, अल्लामा इकबाल के खतूत, मिर्जा गालिब के दीवान, मौलाना हसरत मोहानी के कलम के अनमोल मोती और अबुल कलाम आज़ाद की तसानीफ के बहस आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। पंजाब के इस दूर दराज कस्बे में कैम मुबारक लाइब्रेरी जो कि 100 साल से कैम है, ये एक शानदार कारनामा है जो कि पीर अनीस शाह जिलानी जो कि बहुत बड़े अदीब थे उर्दू के और सराइकी के, ये उनकी उर्दू से और इल्म व अदब से जो मोहब्बत थी उसका ये मुंह बोलता सबूत है।
यहाँ हज़ारों कुतुब मौजूद हैं जो कि तालिब इल्मों के लिए, इल्म व अदब से दिलचस्पी रखने वालों के लिए, तहकीक करने वालों के लिए एक बड़ा कीमती ख़जाना है। और ये लाइब्रेरी हम सब का मुश्तरका विरसा है। तो मैं अरबाब इख्तियार तक ये बात ज़रूर पहुँचाऊँगा कि इस लाइब्रेरी को प्रिजर्व किया जाए, इसे महफूज किया जाए और आने वाली नस्लों तक इसे बेहतर अंदाज में जो है वो पेश किया जाए। इस लाइब्रेरी का सगे बुनियाद सैयद मुबारक शाह जिलानी ने 1926 में रखा। कीमती किताबों को जमा करना और बड़े अदीबों दानिशों की किताबें लेना उनकी जिंदगी का मशगला रहा। 25,000 से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी में तारीखी कलमी जबान के नुस्खा फारसी, अरबी, पंजाबी, सराइकी और उर्दू जबान में आज भी मौजूद हैं। मुबारक लाइब्रेरी अपने अंदर हजारों कुतुब के इल्मी खजानों को छुपाए हुए है। इन नादिर कुतुब को महफूज करने की जरूरत है। हुकूमत इस मुनफरद लाइब्रेरी की सरपरस्ती करते हुए। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। रिपब्लिकन रहनुमा केवन मैकार्थी 15 बार वोटिंग के बाद अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। रिपब्लिकन रहनुमा केवन मैकार्थी अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मैकार्थी को 216 जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हकीम जेफरेज को 212 वोट मिले। ईवान में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 222 और डेमोक्रेट्स की तादाद 213 है। मैकार्थी अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान में 15वें मरहले में स्पीकर मुंतखब हुए हैं। मैक्सिको में मुनशियात किंग एल चापो के बेटे की गिरफ्तारी के खिलाफ गैंग्स के फौज पर हमले के नतीजे में 10 फौजियों समेत 29 अफराद हलाक जबकि 35 एहलकार जख्मी हो गए। सेक्रेटरी दिफा लुइस क्रिसेंसियो के मुताबिक मुनशियात गैंग एल चापो के बेटे ओबिडियो गेजमैन की गिरफ्तारी के खिलाफ गैंग्स ने फौज पर हमले किए। एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाया जो परवाज करने वाला था, जबकि 2 फौजी तैयारों को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद तैयारों ने इमरजेंसी लैंडिंग की। जलाओ घिराव के वाकयात में मुतअद्दिद गाड़ियां नजरियातिश की गई और शाहराहें बंद कर दी गई। तशद्दुद का मरकज मुनशियात कॉटल का गढ़ किलकान था, जहां पूरा इलाका जाम कर दिया गया। झड़पों में 10 फौजियों समेत 29 अफराद हलाक हुए जबकि 35 अफराद जख्मी हुए। उत्तरी अदालत ने मुनशियात स्पीकर ओबिडियो गेजमैन की अमेरिका हवालगी रोक दी। इस सिक्योरिटी फोर्सेस से माह की इंटेलिजेंस मालूमात के बाद गिरफ्तार करने में कामयाब हुई और वीडियो गेजमैन का वालिद और मुनशियात किंग एल चापो भी इस वक्त मैक्सिको की जेल में बंद है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के स्कूल में फायरिंग के वाकये में खातून टीचर जख्मी हो गई जबकि 6 साल बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले तालिब इल्म की उम्र 6 बरस है और फायरिंग करने का वाकया भी इत्तफाकिया नहीं है। बच्चे ने टारगेट करके टीचर पर गोली चलाई। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भारतीय टेनिस स्टार और पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। विमेन टेनिस एसोसिएशन की वेबसाइट को दिए गए एक इंटरव्यू में सानिया मिर्जा ने कहा कि आइंदा माह दुबई में टेनिस चैंपियनशिप के बाद टेनिस रैकेट लटका दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं WTA फाइनल्स के बाद इख्तिताम करना चाहती थी। हम WTA के फाइनल्स में पहुंच रहे थे लेकिन इंजरी का शिकार हो गई। मुझे US ओपन समेत तमाम इवेंट से दस्तबरदार होना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा, मैं नहीं चाहती इंजरी मेरा कैरियर खत्म करे, इसलिए मैंने ट्रेनिंग जारी रखी। अब प्लान ये है कि मैं WTA 1000 खेलने की कोशिश करूं और दुबई में रिटायर हो जाऊं। सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स में कजाकिस्तान की एना ढीला के साथ हिस्सा लेंगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी और पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ जमने लगी। महकमा मौसमियात ने आज शुमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान खित्ता पटोहार में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है, जबकि कराची में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में मौसम मजीद सर्द हो गया। शुमाली इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश से धुंध की शिद्दत में भी इजाफा होगा। बलूचिस्तान के बेशतर इजला में मौसम सर्द और अबर आलूद रहने का इम्कान है। कोयटा, जोब, जियारत, बरनाई, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, चमन पश्चिम में भी बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
زیارت میں درجہ حرارت -5، کلات میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تربت میں کم سے کم 11، پنجگوڑ میں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خزدار اور لسبیلا میں کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ مری، گلیات اور گردونواں میں موسم شدید سرد ہوگا۔ مری میں شام کے اوقات میں ہلکی بارش اور برفباری کا امکان ہے۔ لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، نارووال، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال، بھاولپور، بھاول نگر، منگلا، منڈی بہاؤدین، جوہر آباد اور ڈیرہ غازی خان میں دھند کا امکان ہے۔ ادھر سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خوش رہے گا۔ سکھر، لاڑکانہ، حیدرآباد اور موہنجو دوڑو میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ کراچی میں صبح سے سرد ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔